All right, hi everyone, good afternoon. We'll wait for a couple of minutes for everyone to join in. Okay, then we'll resume. Hi, good afternoon, Srishti. Good afternoon, Aryan. All right, yeah, I think most of the students have joined in now. Yeah, hi, good afternoon, Mamaya. Good afternoon, Vani. Hi, Madhura. Hi, Om. Good afternoon, Tanesh. Good afternoon, Shaunak. Good, good. I hope आप लोगों के टेस्ट अच्छे जा रहे हैं. I think इस संडे भी आप लोगों का टेस्ट था. All right, good, great. कैसा गया? कौन सा टॉपिक पर था? अच्छा, some students had it on atomic structure, some students had it on mole concept. अच्छा, maybe depending upon which batch you joined in, I think accordingly that test would have been there for you. Good, good. इस बार मैंने सुना है कि टेस्ट काफी easy था, relative to I think the last Sunday. Good, good. Acha, हाँ, right. Vrishti, so okay, I'm sincerely sorry for the fact that I did not get time to make the solutions and upload them today before the lecture. But I will definitely make those solutions and their explanations and will share across. Okay, by today or by tomorrow.
I didn't get the time before the class. And if there are one or two questions जो थोड़े से difficult थे in the homework, वो मैं अभी discuss कर लूँगा आप लोगों के साथ में. अच्छा, before starting with today's lecture and the content, I just wanted to spend a couple of minutes with you regarding this analysis of test part. मैंने आप लोगों को I think पहले भी इसके बारे में बताया था that test का analysis करना चाहिए. Did I speak about the difference between your actual score and potential score? Okay, but मैंने okay ठीक है. But have I spoken about the analysis of tests? Did I mention that in one of the lectures? Okay, ठीक है. So some students are saying yes, some students are saying no. In fact, most of the students are saying no. So ठीक है, let me just spend 5 minutes on this. And this is a very, very important skill set, okay, or I can say habit, which all of you should acquire, when preparing for this examination. Okay, so, analyze your test results. So there is this important feedback loop. Right? In any skill set that you want to excel, there is a feedback loop. For example, if you are giving the, if you are, preparing for something non-academic also, to be usme, you regularly analyze your performance and based on that, you try to improve. So yahan par, when it comes to academics, feedback loop is via the tests that you give, right? The periodic tests that are coming every Sunday or alternate Sunday. Now, जब आप इन टेस्ट का एनालिसिस करते हो, ठीक है, सो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, मैं एक एक करके बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बता देता हूँ. You should have a pattern, okay, for analyzing your tests. Okay, follow, or in fact, let me write the first point, which is even more important. Okay, within 1 to 2 days. Okay, or you can sometimes take even 2 to 3 days. अगर थोड़ा लंबा टेस्ट था, मेंस और मेजर साथ में हुआ. So within 2 to 3 days, ठीक है, after giving the test, do the analysis. Now, as part of this analysis, you should follow a simple template. ठीक है, ये टेम्पलेट कैसा रहेगा? एक हाई लेवल पर आपने अंदाजा लगाया टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट पेपर्स में, ठीक है, उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करे, कितने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है. नाउ आउट ऑफ दोज विच यू अटेम्प्टेड, कितने करेक्ट थे, कितने रॉन्ग हो गए, ठीक है. ये आपको एक समरी, ठीक है, पहले तैयार कर लेनी है. एंड यू शुड डू दिस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए. सो लेट्स से केमिस्ट्री का है, तो आपने केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आए थे, उसमें से टोटल कितने अटेम्प्ट करे, कितने छूट गए, कितने राइट थे, कितने रॉन्ग थे, आउट ऑफ द वंस व्हिच आर अटेम्प्टेड. देन योर फोकस फर्स्ट शुड बी in understanding why the questions went wrong or were not able to attempt. ठीक है, इसमें
what you should do is do question by question study. ठीक है, and find out the reason why a certain question remain unattempted. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर. फॉर एग्जाम्पल कि टाइम कम पड़ गया. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द की रीजंस विच मेनी स्टूडेंट्स से कि हाँ अटेम्प्ट नहीं करा. ठीक है, टाइम कम पड़ गया, मुझे देख ही नहीं पाया मैं क्वेश्चन को. ठीक है, या फिर डिफिकल्ट लगा, या कॉन्सेप्ट अननोन था, या कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस नहीं था, या कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, इसकी वजह से आई लेफ्ट द क्वेश्चन. ठीक है, दिस कुड आल्सो बी अ रीजन. ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि एक और रीजन ये हो कि कॉन्सेप्ट पता था, कॉन्सेप्ट नोन था, बट यू नो आंसर डिडंट मैच. ठीक है, सिंस द आंसर डिडंट मैच, you know, I was not able to you know, I didn't attempt the question. मुझे लगा नेगेटिव मार्क हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया. ठीक है, so these are primarily, you know, the reasons जिसकी वजह से students sometimes leave questions. ठीक है, और भी reasons हो सकते हैं, but ये primary reason हो गए. तो आप question by question हर एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि वो किस रीजन में आ रहा है. ठीक है, देन अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, आपने अटेम्प्ट यही सोच के किए थे कि मुझे आता है, बट उसमें से देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच केम आउट टू बी रॉन्ग, देन आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई इट वेंट रॉन्ग. ठीक है, वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस व्हिच स्टूडेंट्स कम अप विद इज केयरलेस मिस्टेक था. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, केयरलेस मिस्टेक था, तो आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ केयरलेस मिस्टेक यू मेड. ठीक है, दिस इज इन फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई. ठीक है, कि किस टाइप का केयरलेस मिस्टेक आपने किया है. ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा डिटेल में. ठीक है, बट क्वेश्चंस छूट जाना और केयरलेस मिस्टेक हो जाना are one of the biggest blunders that you can have, that you can make, that impact your potential score. ठीक है, मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा, बट लेट मी क्विकली फर्स्ट समराइज व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया. ठीक है, केयरलेस मिस्टेक हो गई. ठीक है, हो सकता है कि आपने फ्लूक मारा हो, यू वुड हैव गेस्ड. ठीक है, इफ यू वुड हैव गेस्ड, करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, आज मतलब सुबह सुबह उठे, फील अच्छी आ रही है, यू नो, कल ड्रीम 11 की टीम मेरी बेस्ट आई थी, तो मेरा लक अच्छा चल रहा है, तो इस बार तो टेस्ट में मेरे तुक्के काम करेंगे. ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस स्टूडेंट्स कम अप विद, एंड देन दे unnecessarily lose mark in all these flukes that they make. ठीक है, सो इंश्योर यू आइडेंटिफाई आपने किन क्वेश्चंस में फ्लूक मारे. ठीक है, देन कई बार रॉन्ग होने का रीजन होता है, आई वुड से टेम्पटेशन टू मार्क बिकॉज स्पेंड टाइम इन सॉल्विंग. ठीक है, समटाइम्स ये भी रहता है, मतलब मैं इसको फ्लूक नहीं बोलूंगा, मैं इसको थोड़ा एक अलग कैटेगरी में डालना चाहूंगा. दिस इज समटाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स दे स्पेंड टाइम ऑन अ क्वेश्चन, उनको लगता है कि उनको क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट समहाउ जब सॉल्व करते हैं तो यू नो ऑप्शन मैच नहीं करता, एंड ऑप्शन मैच नहीं करता तो अब ऐसा लगता है कि यार इसमें 5 मिनट दे दिया, अभी ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं, मतलब बहुत ही बुरा फील होगा इसको छोड़ दिया तो देन दे से कि यार मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, बट जिसके सबसे क्लोजेस्ट आया वो आंसर मार्क कर देते हैं. हो सकता है कि मैंने कैलकुलेशन में कुछ एरर कर दिया हो, एंड वो ऐसा भी नहीं कि मतलब फॉर एग्जांपल 10, 11, 12 मतलब ऐसा कुछ आ रहा हो, आसपास हो, मतलब ऐसा होगा कि ऑप्शंस होंगे 10, 20, 40, 80 और उनका आंसर आ रहा होगा कुछ 70 या 60, तो ये मार्क कर देंगे 80 के पास वाला, इसको मार्क कर दिया. ऐसा नहीं होता जनरली. ठीक है, जनरली द डेटा इन द टेस्ट पेपर्स इज नॉट डिजाइन्ड इन दिस मैनर कि आपको ज्यादा गेस वर्क करना पड़े. यू शुड बी एबल टू यू नो
get the answer very close to the option that is given to you. ठीक है, even if you are using certain approximation techniques. तो ये भी एक temptation मैं कहता हूँ कि रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में. Sometimes इसकी वजह से students tend to get the answer incorrect, right? So ये कुछ reasons हैं जिनकी वजह से गलत आंसर भी आते हैं स्टूडेंट्स के. ठीक है, then और क्या रीजन होगा? Any other reason which you would want to cite जिसकी वजह से आपके आंसर्स गलत हो गए? आपने क्वेश्चन किया बट नहीं समझ में आया. ठीक है, देयर कैन बी ट्रिक्स इन द क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज बिकॉज हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन that there are these tricks in the paper. जो क्वेश्चन था उसमें कुछ ऐसा possibly आपने गलत रीड कर लिया within the question, within the paper, या फिर किसी पेपर सेटर ने जानबूझ के वो ट्रिक डाला हुआ था जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आप देख नहीं पाए, उसके अंदर की ट्रिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. सो मोटा मोटा ये सारे आपके बकेट्स रहेंगे जिनमें आपके क्वेश्चंस गलत रहते हैं, गलत हो जाते हैं. ठीक है, सो मेक अ हाई लेवल समरी एंड देन अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऑफ हाउ यू परफॉर्म इन द टेस्ट. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट understanding you will get that how I have to now improve for the upcoming tests. ठीक है, now अब इसमें नोटिस करना ये एक important aspect था which is about the analysis template. And trust me, first time जब आप analysis करोगे तो you might not be very good at it because as I said that this is a skill set that you will have to acquire. This is a skill set जो with practice आता है. ये आपको habit बनाना पड़ेगा अपना, तभी आपको feedback मिलेगा अपनी performance का और आप improve कर पाओगे. ठीक है, otherwise you will kind of have the same routine कि बस टेस्ट दिया और उसके बाद भूल गए. ठीक है, फिर जब अगला टेस्ट आ रहा है तब फिर सोच रहे हैं कि अरे कैसे improve करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था. तो आप ये एक analysis का template follow करना. ठीक है, and ensure करना that you are analyzing tests regularly. Whenever you give the tests you are analyzing them. ठीक है, अच्छा एक और habit जो मैंने notice करी है, ठीक है, this is something which I personally used to do and I have seen many students getting advantage from this, is that just after giving the test, ठीक है, just after giving the test, before discussing with friends, ठीक है, और checking out solutions. ठीक है, आप टेस्ट दिया उसके बाद में डिस्कस नहीं करते पेपर को, एक बार सॉल्यूशंस फटाफट चेकआउट नहीं करते, एक बार री ट्राई करना पेपर. ठीक है, री ट्राई पेपर एंड व्हेन यू री ट्राई, ठीक है, दो चीजें करना. एक तो जो क्वेश्चंस छूट गए उनको अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट क्वेश्चंस which were left जब आप एक्चुअल पेपर दे रहे थे. ठीक है, एंड दूसरा, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट भी कर लिए, ठीक है, जिनके आंसर्स भी आपके आ गए, एक बार डबल चेक जरूर करना. ठीक है, डबल चेक फॉर एनी केयरलेस मिस्टेक. नाउ व्हेन यू डू दिस, what you will be able to come up with is your potential score.
ठीक है. This exercise of re-giving the paper, this will help you get the potential score which you could have achieved if you had, a good temperament, if you would have, carefully did the question. ठीक है. Now, what you will have to do is, what this actually helps you get done is, it helps you identify gap between your actual score, ठीक है, versus potential score. ठीक है. तो ये जो गैप रहेगा, ये आपके लिए इमीडिएट होप रहेगा, ये इमीडिएट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा. बिकॉज ये जो डिफरेंस रहेगा बिटवीन योर एक्चुअल स्कोर एंड पोटेंशियल स्कोर, इट विल बी बिकॉज ऑफ प्राइमरली दीज टू थिंग्स, कि टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से नहीं कर पाए या आपने केयरलेस मिस्टेक कर दी. ठीक है. तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपका हक था, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए थे. क्यों? क्योंकि देखो, जब भी पेपर डिजाइन करा जाता है, सो इस तरीके से नहीं करा जाता है दैट यू शुड कि आप पेपर छूट जाए आपका. ठीक है. इस तरीके से नहीं डिजाइन करा जाता है. एक आध क्वेश्चन रहता है जो कि डिफिकल्ट होता है, तो वो भी आपको समझदारी दिखानी होती है कि हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे टाइम नहीं स्पेंड करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी उतने नंबर का है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उतने नंबर का है. तो ये जब प्रैक्टिस, ये जब हैबिट आप डेवलप कर लोगे, ठीक है, जैसे ही आपने लेट्स से पेपर दिया, ठीक है, विदाउट डिस्कशंस विद फ्रेंड, विदाउट चेकिंग आउट द सॉल्यूशंस, एक बार तसल्ली से पेपर दोबारा देकर देखो कि अगर ठंडे दिमाग से मुझे पेपर ही देना था, ठीक है, then what I would have scored, what would have been my actual score, and what is my potential score. This will really help you understand what is your immediate opportunity for improvement. Then the long term improvement will come from an in-depth analysis, where you will also know which concepts are weak, where you will also know, what kind of careless mistakes you did, where you will also know what kind of questions you should have not attempted in the beginning, you should have left them for later part. Now, please, understand the importance of this. This is an extremely important skill for you to acquire, because this actually creates a lot of difference in your ranks, especially in a competitive exam, like JEE, like NEET. ठीक है, जहां पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के डिफरेंस पे थाउजेंड्स में रैंक शिफ्ट होती हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स आर मेकिंग दीज केयरलेस मिस्टेक्स और दीज टाइम छूट गया वाली मिस्टेक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर रैंक्स दे जस्ट जंप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स. ये अगर आपको ओवरकम करना है तो इसका तरीका ही एनालिसिस है. ठीक है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड मेक और डू एज अ हैबिट. ठीक है. This will help you, personalize your strategy for giving the exams. Right? जैसे कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, मैं फिजिक्स पहले करूं कि मैथ पहले करूं कि केमिस्ट्री पहले करूं. ऐसा कोई सेट है ही नहीं पैटर्न. ठीक है. इट एक्चुअली डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसका कैसा टेम्परामेंट है, किसको कौन सा टॉपिक स्ट्रांग लगता है, किसकी कैसी प्रिपरेशन हुई है. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर समथिंग विच यू विल बी एबल टू डेवलप योर टेस्ट गिविंग स्ट्रेटेजी ओनली बाय एनालिसिस. ठीक है. एंड ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज टेस्ट जब होता है उसके पहले ये सब चीजें दिमाग में आती है कि कैसे टेस्ट देना है, क्या करना है. बट वंस द टेस्ट इज डन, उसके बाद सब भूल जाते हैं. ठीक है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. All right. Now, coming back to this
हाँ ये सब पीडीएफ में आएंगे ही सही ना, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई विल बी सेंडिंग एज पार्ट ऑफ लेक्चर नोट्स ओनली. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आवर chapter discussion. ठीक है, this is something which is quite important for you to realize in the beginning itself rather than realizing it the hard way much later. ठीक है, now as a quick recap, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देख लिया था, मैं एक बार क्विकली आप लोगों को उसके थ्रू लेके चलता हूँ. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और उनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस देखे थे, राइट. सो इसमें we primarily discussed the questions which were related to the speed of molecules, and हम लोगों ने ये जो 3 रिजल्ट्स देखे थे स्पीड के, URMS, UMPS and U average, उनके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. देन काइनेटिक एनर्जी का भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, इन विच वी स्पोक अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, and we talked about average kinetic energy at a per molecule level, per mole level, and if you have n moles of gas के level पे, right. And I also gave a note about the fact that this is due to translational motion only. ठीक है, it will be in thermodynamics जब हम लोग rotational and vibrational kinetic energy का भी discussion करेंगे. ठीक है, then the later part of the class went into discussing Maxwell-Boltzmann distribution of speed, in which we understood about what is meant by speed distribution, right. Why this speed distribution word is used? Because gas के molecules का कोई एक particular speed नहीं होता, right. Some molecules might have lower speed, some might have higher speed, so it's an entire distribution, right. And what we understood from Maxwell-Boltzmann का theory was that अगर pressure, temperature, volume ये parameters gas के constant है, ठीक है, तो ये स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ये भी कांस्टेंट रहता है. इन द सेंस, इफ देयर आर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद लो स्पीड एंड सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाई स्पीड, देन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज होते रहेंगे, बट ये फ्रैक्शन चेंज नहीं होंगे. ठीक है, एंड देन वी स्पोक अबाउट दिस स्कैरी इक्वेशन फ्रॉम द theory of probability, which was given by Maxwell and Boltzmann to describe the distribution of molecular speed. Now, while giving or talking about this equation, मैंने आप लोगों को बताया था that you do not have to remember this equation, but you should be able to read this equation. What do I mean by reading this equation? That you should be able to understand what terms are present in this equation and what these terms mean. ठीक है, and इसमें this term dn was something which was crucial, or you can say dn by n, which represented the fraction of molecules having speed between u and u plus du, right. And then I gave you a snippet of how to use this equation mathematically, but then we left it in between because the integration was something which was out of scope, right. Then we talk about the graphical analysis of this equation. ये मैंने आपको बोला था ये हमारे लिए थोड़ा important रहेगा. ठीक है, this will be something which will be important not just for JEE advanced students but also mains as well as NEET के students, because this curve which talks about the distribution of molecular speed is something that can come as part of your questions, right. And उसमें मैंने बोला था कि 2 टाइप के ग्राफ्स रहेंगे. ठीक है, either the one जिसका area under the graph gives you the molecules having speed between u and u plus du, or the other in which the area under the graph gives you fraction of molecules having speed between u and u plus du. ठीक है, जनरली हम लोग ये सेकंड वाला ग्राफ ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, now based on this introduction about the graph, then we spoke about how to read this graph, right. And the important part was related to the reading of the area under the graph. तो अगर x axis पे u1 से u2 स्पीड के बीच का एरिया हमने कैलकुलेट करा या हाईलाइट करा, तो that meant fraction of molecules having speed between u1 and u2, right. 0 से u का ग्राफ अगर शेड करा तो that area represented fraction of molecules having speed between 0 and u.
right? And total area under the graph, it represented the total fraction of molecules having speed between 0 and infinity, which will basically be all the molecules. So the fraction became 1, right? And in case it was not the graph that gave the fraction, it was the graph that gave the number of molecules, then the total area was something that gave you the total number of molecules that were being analyzed. Okay? And then this was also something which was an important result for you to remember, that how UMPS, U average and URMS, जो हमने 3 statistically important speed निकाली थी गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो ग्राफ पर कैसे कहां पर दिखती हैं. तो जो पीक है that corresponds to UMPS, the most probable speed, then U average उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है, but fraction of molecules around U average वो कम हो जाता है. Then URMS का वैल्यू, ठीक है, एक्स एक्सिस का वैल्यू ज्यादा रहेगा, यानी कि URMS की खुद की वैल्यू ज्यादा रहेगी, बट जो वाई एक्सिस है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो स्मॉल थिन स्ट्रिप का एरिया रहेगा अराउंड URMS, दैट विल बी इवन लेसर देन U average, राइट? सो वी डिड हाईलाइट दैट एज अ नोट बिलो इट, ठीक है. देन टुवर्ड्स द एंड I spoke about how the variation of the distribution change would be, if we vary the temperature. Based on this मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, एंड उसी के बेसिस पे हम लोग आज का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. Now let me take a couple of doubts from your sides, right, which you have based on what we would have studied. Okay, so raise your hand. I will quickly give you an opportunity to talk about. हाँ, बोलो अनिरुद्ध. सर मेरा लेकिन थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मेरे को KPY का पूछना था कुछ. तो अच्छा, तो अगर अर्जेंट नहीं है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर पूछ लो, चलेगा सर. ठीक, थैंक यू. हाँ, ऑलराइट, बोलो अधीरा. सर एक क्वेश्चन था जिसमें हमें URMS इलेक्ट्रॉन का निकालना था, तो वो कैसे करेंगे? हाँ, so what you do is, let me just... is there a constant for it? मतलब K जो मैंने देखा था एक बार एक बुक में, I don't know how to calculate. नहीं, उसको आप एक गैस के पार्टिकल की तरह ट्रीट करो, ठीक है, एंड उसमें जो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? इट विल बी, यू कैन से mass of in fact what I should say is mass of 1 mole, ठीक है, molecular weight of N2 हम लोग कैसे बोलते हैं, mass of 1 mole of N2 in grams, right? तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि 28 grams per mole रहेगा, ठीक है. तो अगर मैं इसी तरीके से आपको molecular weight of electron निकालने के लिए बोलूं, तो आप क्या बोलोगे? आप मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो इन ग्राम्स, राइट? सो इट विल बी हाउ मच? एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9 × 10⁻31 kg होता है वैसे तो, ठीक है, बट चलो अगर आपको केजी में, वैसे भी आपको केजी में यूज करना चाहिए था, ठीक है. तो ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 1 मोल का कितना हो जाएगा? You just multiplied by Avogadro's number. तो ये जो रिजल्ट है ये आप यूज करोगे इन द एक्सप्रेशन ऑफ √3. URMS ही निकालना था ना, मैं अज्यूमिंग URMS निकालना था, तो उसमें बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है. ऑलराइट, हाँ बोलो वृष्टि. सर एक क्वेश्चन था जिसमें थर्मल एनर्जी पूछी थी, तो फिर व्हाट एग्जैक्टली इज थर्मल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. अभी के लिए आप उसको काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज कर लो. ओके सर, ठीक है. थर्मल एनर्जी वैसे तो काइनेटिक एनर्जी बोला जाएगा, बट समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट energy associated with a substance, it is a combination of kinetic plus potential energy. जैसा आपको याद होगा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने टोटल एनर्जी पढ़ा था, which was the sum of its kinetic energy and potential energy,
ठीक है, बट यहाँ पर अभी के लिए जिस चैप्टर में हम लोग एनर्जी का डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ऑल काइनेटिक एनर्जी राइट नाउ। ओके सर। हाँ बोलो शौनक। सर आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन था जिसमें हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी बताना था, तो उसमें भी हमें बोल्ट्जमैन यूज करना पड़ेगा या किसी और मेथड से होगा? क्वेश्चन नंबर बोलो। सर आपका एक्सपर्टीज अटेनर का है, सेकंड 20th क्वेश्चन। अटेनर पहुंच गए तुम, बाप रे तुम तो एकदम खत्म ही करने पे आ गए। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो एक्सपर्टीज अटेनर में? Which question number? अरे सॉरी, हाँ बोलो। सर माय बैड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका कैसे करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, ये जो इक्वेशन था, दिस इक्वेशन, हाँ सर। ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u and u plus du। इसी को मैं मॉडिफाई करके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में बता दूंगा, इन विच द एक्सप्रेशन विल टेल यू द नंबर और द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी बिटवीन E and E plus dE। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ओके सर, एक और आपसे चीज थी सर। मेरा एक फ्रेंड है तो वो रिमूव हो गया, तो वो वापस ज्वाइन नहीं कर पा रहा मीटिंग। सो वो प्रॉब्लम हो जाती है when somebody creates a lot of nonsense तो they get removed। वो उनके लिए प्रॉब्लम रहेगा अभी। All right। Let's begin today's discussion with the next topic in mind। In fact चलो एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था। ठीक है, जो होमवर्क है उसका मैं आप लोगों के साथ में सोल्यूशन शेयर करूंगा। ठीक है, आई एम श्योर अभी आपको उसमें थोड़े बहुत डाउट्स होंगे। ठीक है, बट मैं उसका सोल्यूशन शेयर करूंगा एंड इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे which once you will get hold of you will be in a good position to work on those questions। ठीक है, वैसे भी जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा होमवर्क दे नहीं पाऊंगा because today I am going to talk about some leftover concepts of KTG and I will also introduce real gas in today's lecture। So जो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगा रियल गैस का, उसके ऊपर खास कुछ होमवर्क आ नहीं पाएगा। ठीक है, all right, now coming back to the distribution of speed। तो यहाँ पर आप नोटिस करना लास्ट जो एक टॉपिक देखा था हम लोगों ने, ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर वाज द वेरिएशन विद टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था बेल शेप कर्व, वो टेम्परेचर चेंज करने पर कैसे चेंज हो रहा था। ठीक है, सो अभी नोटिस करना what I'll talk about is variation of distribution of speed with molecular weight। ठीक है, ये आप लोगों ने वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए शायद आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा खुद से। ठीक है, बट if you haven't then let's quickly discuss this। so say you have two gases। ठीक है, एक लाइटर है और एक हेवियर है। ठीक है, एंड उनका मैंने ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दिया है। तो कैन यू आइडेंटिफाई विच वन विल बी लाइटर एंड विच वन विल बी हेवियर? ये M1 मोलिकुलर वेट की गैस का है, ये M2 मोलिकुलर वेट की गैस का है। ठीक है, एंड वी हैव ड्रॉन देम एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर नहीं है, सेम टेम्परेचर है।
of both gases M1 and M2. So what will be the relationship? M1 greater than M2, ठीक है? M stands for molecular weight, or the opposite way. One of the ways in which you can do the guesswork is, if you remember, that the peak, it corresponds to x-axis per UMPS. Okay, this will be UMPS 1 and this will be UMPS 2, right? So this will be root over कितना हो जाएगा ये 2RT by M1, and this will be root over 2RT by M2, right? And कौन सा value ज़्यादा है? Of course 2 वाला ज़्यादा है because it is more towards the right. So what does this conclude? This concludes that M1 is more than M2, right? M1 is heavier. ठीक है? तो लाइटर गैस का ग्राफ, ठीक है, इसको अगर मैं लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, तो लाइटर गैस has a broader distribution of molecular speed. ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया होगा while doing the questions. Oh, sorry, my bad. Heavier gas. नहीं, sorry. हाँ, correct. M2 is a lighter gas. इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा स्प्रेड आउट होगा ना, ये ज्यादा ब्रॉडर. ब्रॉडर का मतलब क्या हुआ? ज्यादा स्प्रेड आउट होगा. ठीक है, ऑलराइट. नाउ अब इस पे एक और रिजल्ट ऑब्जर्व करना. नाउ जैसा मैंने आप लोगों को बोला था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं यू अनिरुद्ध, देखो तुम वापस वही केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो. यू जो है वो एक्स एक्सिस पर है, यू वाई एक्सिस पर नहीं है बाबा. वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो वो केयरलेस मिस्टेक को आप जब भी अवॉइड कर पाओगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. हाँ, अब नोटिस करना, एज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट which is based on energy distribution of molecules of gas. ठीक है, energy distribution of, and when I say energy I primarily mean kinetic energy only. So this is something which comes from the speed distribution only. ठीक है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नोटिस करना. इसमें कैसा रहेगा? dn का रिजल्ट कैसा था हमारे लास्ट फॉर्मूला में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था. dn इज इक्वल टू 4 पाई n, ठीक है, m अपॉन 2 पाई rt रेज टू द पावर ऑफ 3/2 e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt u स्क्वायर du. ठीक है, अब इसमें आप नोटिस करना, if I replace half mu square with e,
ठीक है, बिकॉज ये काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है, एंड ये पर मोल लेवल पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। और इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन टेक इट एट अ पर मॉलिक्यूल लेवल आल्सो, हाफ mu square is kinetic energy, and if I differentiate it, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना 1/2 into 2 mu du is equal to de, ठीक है, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। देन what I can have by substituting, ठीक है, यहां से u and du को सब्स्टिट्यूट कर देना, in terms of E and DE, ठीक है। U क्या रह जाएगा 2E/m का स्क्वायर रूट एंड du अकॉर्डिंगली आप लिख दोगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ D ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो व्हाट यू विल गेट इज कॉल्ड एज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यू विल गेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि उसका रिटन डिटेल्ड फॉर्म आपके लिए इतना काम का है नहीं, ठीक है। बट हाँ, यू विल गेट एन आइडिया। चलो मैं लिख भी देता हूं, डोंट बॉदर अबाउट ट्राइंग टू रटोफाई इट, ठीक है। dn आ जाएगा 2πn 1/pi kBt, kb stands for that Boltzmann's constant, 3/2 e की पावर माइनस e अपॉन kBt रूट e de, ठीक है। इस टाइप का ये आ जाता है। जस्ट क्या करा है मैंने, इसी एक्सप्रेशन में u की जगह e लिखने की कोशिश करिए और du की जगह de लिखने की कोशिश करिए फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूशन, तो आई गेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड इसको भी जब आप प्लॉट करोगे, ठीक है, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को भी जब आप प्लॉट करोगे 1/n dn/de वर्सेस e, तो ये भी ऐसा ही बेल शेप कर्व आता है, ठीक है। ये भी ऐसा ही बेल शेप कर्व रहता है जिसमें कम फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी कम रहता है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी कम फ्रैक्शन का रहता है, मोर और लेस सब एक एवरेज के अराउंड लाया करते हैं। What I would request you to remember as a result, E most probable, ठीक है, और I should say most probable kinetic energy, ठीक है, इसका रिजल्ट आप याद रख लेना। ये कैसे आ जाएगा, बेसिकली dy/dx को जीरो करके, मैक्सिमा की इक्वेशन को पुट करके dy/dx को जीरो करोगे आप, ठीक है। मैथ्स लगेगी बट मैं वो अगेन मैथ्स आपके सामने कर नहीं रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मैं सीधा आपके सामने रिजल्ट लिख रहा हूं, दिस विल बी हाफ kBt, ठीक है। दिस इज अगेन एट अ पर मॉलिक्यूल लेवल, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ये रिजल्ट सब स्टूडेंट्स ध्यान में रखेंगे। समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू इज कि वो केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं, उनको UMPS याद है। UMPS कैसा होता है, √2 RT/m, ठीक है। और वो क्या करेंगे, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी MPS पूछूंगा उनसे, तो वो क्या कर देंगे, हाफ m इंटू UMPS का स्क्वायर कर देंगे और बोलेंगे हाफ m इंटू 2 RT/m, और ये 2 mm कट गया और RT बोल के आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकाली जाती है, ठीक है। दिस इज नॉट द वे इन विच most probable kinetic energy is calculated। क्यों, क्योंकि u का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और u स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि दोनों का एवरेज सेम हो या दोनों का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी सेम हो। जो u का एवरेज है और जो स्क्वायर्स का एवरेज है उसका स्क्वायर रूट, ये सेम थोड़ी ना रहते हैं। तो इसकी वजह से डोंट गो वाया दिस अप्रोच, ठीक है। जस्ट रिमेंबर
that this is the result for the most probable kinetic energy. कैसे निकाला ये रिजल्ट? ये ऐसे फालतू डेरिवेशन करके नहीं, this was calculated by doing dy by dx equal to 0. जो मैक्सिमा की कंडीशन रहती है, ये हमारा जो y एक्सिस पे इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकाला गया है. ठीक है, यू प्लीज रिमेंबर द रिजल्ट. ठीक है, अच्छा रहा सवाल तुम्हारे क्वेश्चन का शौनक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें वो डेटा डालना है. ठीक है, एंड ये पर मॉलिक्यूल के लेवल पर है. अगर आपको पर मोल के लेवल पे करना हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा? What will be result at a per mole level? It will be half RT. ठीक है, just replace Kb by R. ठीक है, तो ये पर मोल के लेवल का रिजल्ट रहता है. ठीक है, हाँ, इसमें कुछ डाउट बताओ, बोलो अनिरुद्ध. अरे केबी को आर से क्यों रिप्लेस किया आपने? Na से मल्टीप्लाई करा ना, पर ओ हाँ हाँ, मॉलिक्यूल से पर मोल पे गया तो Kb इज R by Na. आर बाय एन. करेक्ट. मल्टीप्लाई करूंगा तो R हो जाएगा ना. यस, थैंक यू सर. ठीक है, ऑलराइट. तो ये एक और रिजल्ट था कमिंग फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नाउ हाँ, एक मिनट, बोलो अनुभव. सर आपने वो मोस्ट तुम्हारी आवाज पूरी ब्रेक हो गई, दोबारा बोलो, कुछ भी आवाज समझ में नहीं. सर आपने मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए dy by dx को 0 से इक्वेट किससे किया? ये हमने कैलकुलस में आपने सीखा होगा ना कि कोई भी ग्राफ के मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन मैथमेटिकली क्या होती है कि यहाँ पर. नहीं सर, वो तो पता है, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो. सर वो समझ में आ गया, लेकिन सर वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी उसके एकदम टॉप पर कैसे आ गया, ये मुझे समझ में, इसके क्रेस्ट पर कैसे आ गया वो? अरे वो मैं मैथ्स नहीं करके दिखा रहा, तुम चाह रहे हो कि मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊं, तो वो नहीं होगा. वो तुम्हें चेन रूल लगाना आना चाहिए डिफरेंशिएशन करने का. ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको डिफरेंशिएट करने करो तो सही एक बार घर पे जाके. अभी खैर घर पे करो तो, बट हाँ एक बार खुद से ट्राई करना. ओके सर. ऑलराइट, नाउ अब एक दो और रिजल्ट देख लो. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के. ठीक है, ये रिजल्ट्स किस तरीके से रहेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व करना. So there is this one more result associated with the kinetic theory of gases, which is called as collision frequency. ठीक है, collision frequency या इसको हम लोग Z बोलते हैं. इसका डेफिनेशन हमारे लिए क्या रहेगा यहाँ पे ऑब्जर्व करना. Collision frequency is defined as average number of collisions, ठीक है, of a molecule per second. ठीक है, एंड जो यहाँ पे कोलिजन्स के बारे में बात हो रही है, तो दीज आर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स ओनली. ठीक है, दैट इज सेइंग कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है.
साइमल्टेनियसली 3 मॉलिक्यूल भी एक साथ टकरा सकते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल द कोलिजन्स दैट वुड बी हैपनिंग इनसाइड अ वेसल, ठीक है, यू हैव अ वेसल जिसके अंदर गैस प्रेजेंट है, तो इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, तो जो आपस में कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है, विद ईच अदर, उसमें जो बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स है, बाय मॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स हो रहे हैं, उनका काउंट ये केटीजी हेल्प करती है डिराइव करने में, ठीक है। नाउ यू मे आस्क कि ये कैसा मतलब रिजल्ट है, मतलब मुझे क्या मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, आई डोंट केयर, मतलब मुझे यू नो कोलिजन विद वॉल्स से मतलब था जिससे प्रेशर आता था, ठीक है, बट आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उससे मुझे क्या लेना देना। नाउ इसका यूज आप लोगों को अभी इतना नहीं आएगा, देयर विल बी दिस चैप्टर in future in chemistry only which will talk about rate of reaction, ठीक है। तो rate of reaction, let's say gaseous reaction अगर हो रहा है, मान लो गैसेस अगर आपस में रिएक्ट कर रही हैं, राइट, तो रिएक्शन कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं एंड प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ना, तो कितने कोलिजन्स हो रहे होंगे, उससे कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट स्टडी व्हिच इज अंडर दिस चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। तो उसके लिए इट विल बी इंपॉर्टेंट टू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ अगेन विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द डेरिवेशन, फर्स्ट मैं आप लोगों को रिजल्ट बता देता हूं इसका, ठीक है। Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस क्वांटिटी को, एंड इट टॉक्स अबाउट द एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट अ मॉलिक्यूल इज डूइंग विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 second टाइम ड्यूरेशन, राइट। इट इज √2 pi d square into u average. U average stands for the average speed into n by v, ठीक है। इसमें एक एक टर्म का मीनिंग नोटिस करना, व्हाट डज ईच टर्म मीन, राइट। सो Z रिप्रेजेंट्स, ये तो मैंने ऊपर ही एस्टैब्लिश कर दिया है, दिस रिप्रेजेंट्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। √2 एंड पाई तो खैर आपको पता ही है क्या है, बट √2 का एक सिग्निफिकेंस होता है विच इज कॉल्ड एज अ करेक्शन फैक्टर for relative speed, ठीक है। देन D, ये जो स्मॉल d है यहाँ पे नोटिस करना, दिस स्टैंड्स फॉर द डायामीटर, ठीक है, इट इज नॉट डेंसिटी, दिस स्टैंड्स फॉर डायामीटर ऑफ गैस पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें अजम्पशन यही रहता है कि स्फेरिकल मॉलिक्यूल था, ये अजम्पशन के ऊपर बिल्ड है ये रिजल्ट। U बार, दिस स्टैंड्स फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। N, सॉरी नॉट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज स्पीड, ठीक है। U बार स्टैंड्स फॉर एवरेज स्पीड, ठीक है। देन N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। तो कैपिटल N is the basically total number of molecules. I would use the word total also here. Total number of molecules inside the vessel upon volume of vessel. Okay, so this gives you the result of average collisions happening per second between molecules. Okay. Now ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत क्यों रहेगी वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इन यू नो
5 to 10 minutes मैं एक और रिजल्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं पहले, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि फॉर्मूला हमें क्यों याद रखना पड़ेगा. So there is this another result which comes from kinetic energy, which is called as in fact चलो before talking about mean free path मैं एक और result आप लोगों को लिखवा देता हूँ. ठीक है, let me share one more result. So this would be something which goes at the backdrop of rate of effusion. ठीक है, तो आप लोगों को ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ एफ्यूजन का रिजल्ट मैंने बताया था जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड ग्राम्स लॉ पढ़ा था. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिजल्ट, द सेम रिजल्ट, you know, based on the derivation from KTG. ठीक है, kinetic theory of gases से. So यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना दैट ये रिजल्ट कैसा रहेगा. जस्ट एक छोटा सा एडिशनल डिटेल मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा. सो इसमें डिटेल कैप्चर करना. रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ एफ्यूजन विल बी इक्वल टू, ठीक है, आप लोगों ने कैसा पढ़ा था, ये पार्शियल प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड टेम्परेचर. राइट, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था. इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसका मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं आपको, विच कम्स फ्रॉम दिस theoretical derivation from rate of effusion. ठीक है, that is Na. Na stands for Avogadro's number. Divided by root over टू पाई आर. ठीक है, where m is the molecular weight. ठीक है, अदरवाइज इसको अपन लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, p into a. ठीक है, अगर ये Na को अंदर लेना है मॉलिक्यूलर वेट के अंदर, सो इट इज देन रूट 2 पाई m into kBT. kB stands for Boltzmann's constant, and ये जो small m है, this will be the mass of gas particle. ठीक है, this m stands for mass of gas particle. This is Boltzmann's constant. ठीक है, बाकी रिजल्ट्स आर सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली. ठीक है, तो ये एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए हो गया. ठीक है, और या फिर अगर आपको रूट पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई kb इस तरीके से डील करना है. ठीक है, दिस विल बी योर proportionality.
कांस्टेंट, ठीक है। वो डेरिवेशन में जाता है एक्चुअली। द थिंग इज कि ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, ठीक है, ये किससे कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है, डिराइव फ्रॉम केटीजी। कैसा है ये? डिराइव फ्रॉम केटीजी बेस्ड ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी विद वॉल, ठीक है, विद वॉल, और यू कैन से अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो जैसे ये वाला रिजल्ट होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, ये मैंने डिराइव करके दिया आपको। ये कैसा रिजल्ट था? दिस वाज अ रिजल्ट फॉर बायोमोलिकुलर कोलिजन्स, कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कैसे कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है। यही चीज को केटीजी और फर्दर एक्सप्लोर करता है। तो वहां पर यू कैन ऑल्सो कंप्यूट और टॉक अबाउट द कोलिजन्स हैपनिंग विद द वॉल, ठीक है, कोलिजन्स हैपनिंग अक्रॉस अ सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। and that is something which when calculated gives the rate of diffusion, क्योंकि अगर यहाँ पर वॉल की जगह मैं होल कर दूंगा तो जितने कोलिजन्स यहाँ पर होने वाले होंगे in that given cross section area, that will be the molecules that will be going out, क्योंकि पहले वो क्या हो रहा था, कोलाइड करके वापस अंदर आ रहे थे, बट अब वहाँ पे वॉल ही नहीं है, होल हो गया, तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो वहां से ये रेट ऑफ इफ्यूजन का भी फॉर्मूला डिराइव करा जाता है, ठीक है। Right, Na and R are gas constant and Avogadro's constant, ठीक है। So this is gas constant, ठीक है। Capital M stands for the molecular weight and Na is Avogadro's constant, ठीक है। तो ये एज अ रिजल्ट ध्यान रखना, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इट इज R अपॉन Na, ठीक है। एंड इंडिविजुअल पार्टिकल का मास भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय Na, ठीक है। तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड यहाँ से यहाँ कैसे गए हम लोग, यू कैन नाउ सी द इंटर कन्वर्जन। ये Na को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, रूट Na इंटू रूट Na, एक को इधर ले लो और एक को इधर ले लो, वहां पर एक Kb और एक M बन जाएगा, ठीक है। इसका वृष्टि, इसका डेरिवेशन ना, इसका डेरिवेशन एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज इसके डेरिवेशन में अगेन एक ऐसा इंटीग्रल आता है जिसका कैलकुलेशन मतलब हमारे अभी लेवल पर नहीं है, ठीक है। इसमें भी एक्चुअली कुछ इस टाइप का इंटीग्रल आता है, x e की पावर माइनस ax² dx गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, कुछ इस टाइप का एक इंटीग्रल आता है इसके डेरिवेशन में, ठीक है। इसका रिजल्ट ऐसे 1/2a होता है, बट वो डेरिवेशन हमारे बस का नहीं है अभी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी डोंट गेट इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस, ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ऑलराइट, देन एक और रिजल्ट जो केटीजे का रहेगा, विच इज मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये रिजल्ट वापस मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले एक बार इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। आई होप रेट ऑफ इफ्यूजन की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, बिकॉज आई होप कि यू रिमेंबर द डेफिनेशन फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशंस, दैट रेट ऑफ इफ्यूजन हम लोग डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर ही जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिफाइन किया गया है, दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली dN/dt, number of molecules passing through a cross sectional area, ठीक है, in a given amount of time, ठीक है। मीन फ्री पाथ आप ऑब्जर्व करना, मीन फ्री पाथ कैसा रहेगा, मीन फ्री पाथ का सिंबल रहता है लैम्डा, और उसका डेफिनेशन यहाँ पर आप नोटिस करना, what does mean free path mean and how it is defined. Now the definition is average
distance traveled by a molecule between successive collisions. So जैसा आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, यू हैव अ सैंपल ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड. ठीक है, अब इसमें कैसा हो सकता है, ये मॉलिक्यूल लेट्स से इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर उसके बाद कोलाइड कर गया, उसके बाद इस डायरेक्शन में चला गया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा और कोलाइड कर गया. ठीक है, फिर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, फिर कोलाइड कर गया, राइट, एंड देन अगेन डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है, मे बी इधर वापस चला गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, एंड द डिस्टेंस दैट अ मॉलिक्यूल ट्रैवल्स will vary from collision to collision. ठीक है, तो what we are saying is we are taking an average. ठीक है, that average कितना distance एक molecule travel करता है between two successive collisions, right? So इसका result किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर आप observe करना. ठीक है, number of collisions and time के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो एक सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिफाइन हो रहा है ना. इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड the number of collisions that are happening वो z है, right? तो what is the time period between successive collisions? ठीक है, this will be the average time period between successive collisions. तो ये कितना हो जाएगा, 1/z. ठीक है, now डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, ये कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो स्पीड तो क्या है, u बार एवरेज स्पीड है, और टाइम कितना लगा, 1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टाइम बिटवीन एवरेज कोलिजन. तो ये आपका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो गया, दैट लैम्डा इज इक्वल टू u बार इनटू 1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी. एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना लिखा था मैंने अभी, √2 पाई d u बार इनटू n/v. तो ये u बार कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई d इनटू n/v. ठीक है, this n/v is also sometimes reported as n star. ठीक है, कहीं पर आपको अगर ये n star के फॉर्म में लिखा हुआ मिले फॉर्मूला, तो what it would mean that n star will be n/v. ठीक है, so again the terms are the same as above. d represents the diameter of molecule and n represents the total number of molecules, and V represents the volume of vessel या volume of the system in which the gas is present. ठीक है, हाँ, इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, क्या डाउट है. बोलो चिन्मय. सर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, वो चीज नहीं समझ आई. देखो ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी, एक बार ऊपर जाओ. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल पर सेकंड. ठीक है, तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं वो हम z बोल रहे हैं. हाँ, तो एक कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा?
ओके ओके सर, समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये टाइम पीरियड मिल गया एंड मॉलिक्यूल का स्पीड उसका एवरेज स्पीड है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिल गया बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। ओके सर। नाउ हाँ, इसके अलावा क्या पूछ रहे हो वृष्टि? करेक्शन फैक्टर ऑफ रिलेटिव, ये √2 वाला पार्ट, करेक्शन फैक्टर ये बेसिकली इसके डेरिवेशन का पार्ट है, ठीक है। इसके डेरिवेशन के पार्ट में एक्चुअली ये ओरिजिनली √2 नहीं आता है। इफ वी अज्यूम one molecule to be moving while other molecules to be stationary, ठीक है, वहां से इसका डेरिवेशन आता है, बट एक्चुअल में all the molecules are moving, so as a result ये करेक्शन फैक्टर आता है फॉर द रिलेटिव स्पीड, ठीक है। वो अगेन डेरिवेशन की डेप्थ में है इसके डिटेल्स, बट अभी के लिए मैं आप लोगों को पहले रिजल्ट्स याद रखने के लिए ऊपर फोकस करूंगा, ठीक है। हाँ सॉरी माय बैड, मैंने यहाँ पे √2 पाई d स्क्वायर है। ठीक है। हाँ, क्या डाउट पूछ रहा है निरोध? एक मिनट, लेट मी अनम्यूट यू। कहाँ गए? बोलो। सर वो एक मॉलिक्यूल की डिस्टेंस कैलकुलेट करने में जो फॉर्मूले में n आता है, वो कैपिटल N की जरूरत क्या है? मतलब सारे मॉलिक्यूल्स क्यों कंसीडर करता है एक मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए? नहीं नहीं, सो ध्यान से समझना, ये जो बैकग्राउंड है इसके पीछे का, वो यहाँ से आ रहा है कि हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं और उसमें एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, कि एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे होंगे। ओके ठीक है, तो वहां से ये Z का रिजल्ट आया था। अच्छा, ये Z के वजह से, ओके ठीक है ठीक है। ये Z और का, सर ये Z जैसे आपने लिखा है वैसे ही लिखते हैं, या मतलब जो बीच में आपने लाइन मारी जैसे Z में? वो मेरा तरीका है, मतलब वो Z आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट जनरली वो मैं 2 से कंफ्यूज कर देता हूँ, ओके ओके, वो इसलिए एक बीच में डंडा मार देता हूँ। यस, थैंक यू सर। ठीक है। जूम करूं मैं, जूम आउट करूं, क्या कैप्चर करना है? ये मीन फ्री पाथ, अभी ठीक है? ऑलराइट, नाउ नहीं Z एटॉमिक नंबर नहीं है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में था होगा। हाँ बोलो कुमकुम। सर एक बार वो सक्सेसिव कोलिजन दोबारा बता दो। ये वाला पार्ट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पार्ट। नो सर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ये वाला, यस सर। देखो अगर मैं इंडिविजुअल कोलिजन, ठीक है, हर एक कोलिजन को एनालाइज करूं, ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये गया कोलाइड करा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, फिर अगला कोलिजन इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, फिर अगले कोलिजन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो हर बार तो अलग अलग रिजल्ट आएगा ना मेरा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरा। तो उसमें व्हाट आई एम आस्किंग इज एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, ठीक है, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में एवरेज। अभी यहाँ पर मान लो ये 1 एंगस्ट्रॉम था, फिर ये 1.5 एंगस्ट्रॉम था, ये 0.75 एंगस्ट्रॉम है, ये 0.6 एंगस्ट्रॉम है, राइट, इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, या मतलब और भी बड़ी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितना डेंस यहाँ पर सिस्टम है, बट मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ कि एवरेज, ऑन एन एवरेज, मोटा मोटा बिटवीन 2 कोलिजन्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन विल बी एवरेज स्पीड
into time between two collisions. अब टाइम बिटवीन टू कोलिजन कैसे निकाला मैंने? यहाँ से कि 1 सेकेंड में अगर z कोलिजन हो रहे हैं तो एक कोलिजन होने में कितना टाइम लग रहा होगा ऑन एन एवरेज, उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो शौनक। सर हमने फर्स्ट लेक्चर और केटीजी की भी अजम्पशन में माना था कि आपके गैसेस के मॉलिक्यूल पॉइंट मास है, राइट? हाँ हाँ, कि 0 साइज है, तो हमने जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में डायमीटर लिया है तो वो नहीं करेगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनफिनिटी हो जाएगा? ये नहीं बोला था कि मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास है, ये नहीं बोला था। केटीजी का अजम्पशन था कि जो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो अभी भी ये जो मॉलिक्यूल है ये केटीजी के अजम्पशंस के अंडर ही है, आइडियल गैस के अजम्पशंस के अंडर ही है कि डायमीटर जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू व्हाट द एक्चुअल साइज ऑफ द सिस्टम इज। ओके सर। तो वो अजम्पशन हमने चेंज नहीं करा है। ठीक है, सो ये मेरे केटीजी के 3 रिजल्ट्स थे। ठीक है, अब इस पर आप नोटिस करना, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा which will be what I would be expecting you know as a question from you, कि इतना आपको समझ में आना चाहिए अब जब हमने इतना you know गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, फॉर अ given gas, ठीक है, for a given quantity of gas, I would say for a given quantity of gas, find the relationship between और इनफैक्ट रादर टेबल के फॉर्म में करते हैं। फॉर अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस फिल द टेबल बिलो। ठीक है, किस तरीके से टेबल है यहाँ पे ऑब्जर्व करना। सो मैं z का रिजल्ट लिख देता हूँ, √2 पाई d स्क्वायर u एवरेज इंटू n/v, एंड देन मैं लैम्डा का भी रिजल्ट लिख देता हूँ। लैम्डा का रिजल्ट हम लोगों ने निकाला 1/√2 पाई d स्क्वायर इंटू n/v। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर लेट्स से प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, पहले पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट है, राइट, तो z का वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड z का वेरिएशन विद वॉल्यूम कैसा रहेगा। ठीक है, सो यहां पर नोटिस करना प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं P इज कांस्टेंट, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू T और V कैसा रहेगा। तो यहां पर आप नोटिस करोगे √2 पाई d ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, देन ये u बार के अंदर कैसा आता है, u बार के अंदर √t आता है, और ये n/v क्या हो जाएगा, ये n/v p/RT हो जाएगा, और p कांस्टेंट है तो बाकी सब कांस्टेंट्स के साथ में इसको मर्ज कर देंगे, और ये √t ऊपर था और नीचे t है, तो व्हाट आई विल फाइंड इज दैट z विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √t।
तो आई कैन से दैट अगर प्रेशर कांस्टेंट है फॉर अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कम हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर v का मुझे वेरिएशन देखना है, p कांस्टेंट है तो t और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं जस्ट t की जगह यहां पर v भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरीके से यहां पर अब आप नोटिस करना, लैम्डा के लिए मैं कैसा लिखूंगा, लैम्डा का वेरिएशन कैसा रहेगा विद टेम्परेचर, √2 पाई d ये सब तो कांस्टेंट है, n बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली p बाय आर टी, और ये t ऊपर चला गया, t तो कांस्टेंट है ही सही, तो ये लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ गया, और यू कैन से लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v आ गया। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर नोटिस करना ना, ये नीचे एक t है, ऊपर √t है, तो ये कैंसिल आउट करके नीचे √t तो बचेगा। देखो मैं पूरी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, यहां पर मैं रफ में ही बता देता हूँ, √2 पाई d स्क्वायर, ठीक है, इंटू u बार क्या होता है 8 RT बाय पाई m, ठीक है, इंटू n बाय v। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 8 r पाई m, ये सब कांस्टेंट है, क्या बचा यहाँ पे √t बचा, और n बाय v क्या होता है p बाय RT बाय आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर वगैरह भी रहेगा, बट चलो वो भी कांस्टेंट ही है। अब r तो कांस्टेंट है, इसको भी हटा दिया, तो ये क्या बचा p बाय √t बचा ना, और अगर p प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको भी मैं हटा दूंगा, तो z किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, बस 1 बाय √t के। अब क्योंकि t एंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आई कैन आल्सो से दैट z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम आल्सो। ये समझ में आया। सो इसी तरीके से व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू इज नाउ फिल द रेस्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, रेस्ट ऑफ द टेबल कैसा है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द रेस्ट ऑफ द टेबल इज, यहां पर आई एम गोइंग टू राइट t कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तो फिर वेरिएशन विद p या फिर v कैसा रहेगा, एंड फाइनली अगर v कांस्टेंट मान लो, ठीक है, रिजिड वेसल है, तो उसमें वेरिएशन विद p या फिर t कैसा रहेगा। ठीक है, ये डिराइव करके दो मुझे क्विकली। हाँ सही है दीपेश, करेक्ट, z वर्सेस p का आपने सही बताया। आगे का बताओ। हाँ बोलो प्रियांशु। सर ये नीचे वाला पार्ट समझ नहीं आया, जो थर्ड पार्ट था लैम्डा वाला। लैम्डा वाला भी आसान है ना, इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो ये पार्ट कांस्टेंट हो गया, बाकी √2 पाई d स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है ही सही,
तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ गया ना, एंड वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी आ गया। हाँ, ऑल राइट। सो उसके बाद में आप लोग चेक करो। हाँ कुमकुम, राइट। यहाँ पर आ जाएगा आपका z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और यू कैन से z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। करेक्ट। लैम्डा के बारे में क्या है? Lambda is inversely proportional to p and lambda is directly proportional to v। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, थर्ड कॉलम में आ जाओ। ध्यान से करना है यहाँ पर। नहीं दीपेश, गलत दे दिया आपने। नहीं वेदांत, नहीं विशाल। हाँ, वृष्टि ने सही दिया है। राइट साक्षी, करेक्ट। राइट। सो यहाँ पर कैसा हो जाएगा ये? z is directly proportional to रूट p, या फिर z is directly proportional to रूट t आ जाएगा। ठीक है, क्यों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ u बार में जो रहेगा which is रूट t उसके प्रोपोर्शनल रहेगा, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो p और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही सही। ठीक है, एंड दिस विल बी अनचेंज्ड। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो आप प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करो तब भी ये चीज मीन फ्री पाथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। बस एक और क्वेश्चन कर लो फिर मैं ब्रेक देता हूँ। ठीक है, ये जेई एडवांस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्राई करो।
हाँ नहीं, हाँ श्रवनी तुम्हारा आंसर सही है, हर्ष तुम्हारा आंसर सही है, राइट। नहीं वानी, रेसिप्रोकल होगा आपके आंसर का। हाँ मनस्वी, वरुण राइट, वानी राइट। नहीं बाकी लोगों का नहीं है अभी तक करेक्ट। इसमें देखो ना, रीड करो इस क्वेश्चन को कैसा दिया हुआ है। देयर इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, होगा कुछ डीसी डिफ्यूजन कोफिशिएंट, मुझे नहीं पता, आगे पढ़ते तो है क्या है। ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ लैम्डा एंड यू बार, ठीक है। तो अब यहां पर बोला जा रहा है इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, तो क्या रिजल्ट रहेगा। तो मैं इनको टेम्परेचर प्रेशर के टर्म्स में लिखने का कोशिश करूंगा। लैम्डा क्या हो जाएगा, √2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन बाई वी, ठीक है। एंड ये हो जाता है, इसके बारे में मुझे फॉर्मूला पता है, दैट ये √8 RT बाय पाई एम रहता है, ठीक है। तो जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में जा सकता है, ठीक है, मतलब जो भी काम का नहीं है उसको अपन हटाते हैं अभी। ये मतलब √2 पाई डी स्क्वायर 8 R पाई एम, ये सब नहीं चाहिए हमको, मतलब इन सबको हटाओ अभी। तो ये क्या हो जाएगा, V बाई एन इंटू √T ऐसा रहेगा। एंड PV इज इक्वल टू nRT रहता है, ठीक है। तो ये V बाई एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, T बाई P, तो ये T√T अपॉन P के प्रोपोर्शनल है। मैं सब कुछ P और T के टर्म्स में क्यों लेके आ गया, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे बोला ही है कि टेम्परेचर का ये वेरिएशन है और प्रेशर का ये वेरिएशन है, तो मैं फाइनली सब कुछ को टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में ही लेके आ गया हूँ, ठीक है। नाउ अब आप बोलोगे, देखोगे इसमें कैसा हो रहा है, टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो 4 इंटू √4 दैट इज 4 इंटू 2, और प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। दैट विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, in which you would have approached it in a different manner rather than writing just in term of मैं अच्छा दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे डिफ्यूजन कोफिशिएंट को जो दिया हुआ है टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कितना डिफ्यूजन कोफिशिएंट में चेंज आया। तो मैंने लिख दिया डिफ्यूजन कोफिशिएंट एज पर द क्वेश्चन इट इज मीन फ्री पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मीन स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद है, ठीक है, और मुझे मीन स्पीड का भी फॉर्मूला याद है, तो इनमें से अब मैंने जो अननेसेसरी चीजें थी उनको तो हटा दिया। जस्ट यहाँ पर ये n बाई वी को अगर मैं लिखूंगा तो v बाय एन हो जाएगा, ये रहेगा, और यहाँ पे √T रहेगा, और v बाय एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू nRT से T बाई P। तो मुझे दिख गया कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली देन आई यूज दैट टू गेट दिस आंसर, ठीक है। तो ये आपका पार्ट रहेगा विच इज रिलेटेड टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड उनके रिजल्ट्स, ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। विल रिज्यूम एट कितना हो गया अभी, 5:10 हो गया ना, 5:20 को रिज्यूम कर लेते हैं। सो विल रिज्यूम एट 5:20 एंड then I'm going to start a discussion of real gases.